اور 25 جولائی جو ہے وہ اب پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے گا. بس اس 25 جولائی پہ جس طریقے سے اس سلیکٹڈ ہائیبرڈ نظام کو لے کر آیا گیا تھا، اس کا نتیجہ، اس کا نقصان آج سارے پاکستان کے سامنے ہے، اور اس دن کو منانا بڑا ضروری ہوتا. اگر ہم کووڈ کے دور میں نہ ہوتے تو اس وقت پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ ہوتے اور اس سیاہ دن کو، اس بلیک ڈے کو منا رہے ہوتے. جس طریقے سے یہ سلیکشنز کروائے گئے، ہمیں سب یاد ہے کہ کیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں آپ کو تین دن تک انتظار کرنا پڑا اپنا ریزلٹس لینے کے لیے. ہمیں سب یاد ہے کس طریقے سے یہ جو سارے کے سارے ریزلٹس لے کر آئے تھے، ان کا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا جب ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے کہ ان کا پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز میں بیٹھے ہو، وہ اس کاؤنٹ کو سپروائز کرے. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان بھر میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا تھا. اس سلیکشنز میں ہمیں سب پتہ تھا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اور پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بہت ہی بڑا کردار ہے. لیکن 90% فارم 45 جو اس سلیکشن کے تھے وہ آج تک غائب ہے. غائب اگر نہیں ہے تو اس میں پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں. اگر پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں تو اس کا کیا لیگل سٹینڈنگ ہے؟ جس طریقے سے ہمارا ادارے اس الیکشنز میں متنازع ہوئے، ماضی میں کسی الیکشن میں ہمارے ادارے اتنے متنازع نہیں ہوئے تھے. یہ پاکستان کا شاہد واحد الیکشن تھا، پہلا الیکشن تھا جس میں ہر پولنگ سٹیشن میں باہر اور اندر ہمارا فوج کو کھڑا کر دیا گیا. اس الیکشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں، نیشنل اسمبلی ختم ہو چکا تھا، سینٹ میں پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر اس ایشو پہ ایجیٹیٹ کرتا رہا کہ اگر آپ نے سیکیورٹی دینا ہے تو سیکیورٹی کے حد تک آپ باہر کھڑا ہو سکتے ہیں. اندر کھڑا ہونے کا کیا قانونی، آئینی یا لاجیکل جہاز بنتا ہے؟ جبکہ آپ نے جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب 2007 کے الیکشنز چل رہے تھے، جب پاکستان کے سڑکوں پہ پاکستان کے عوام کا خون بہہ رہا تھا، جہاں پاکستان کے ہر صوبہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آگ جل رہا تھا، اس ماحول میں جب آپ نے الیکشنز کیے تھے تو تب ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج نہیں تھے. جب آپ نے 2013 کے الیکشنز کیے تھے تب بھی دہشت گردی کا خطرہ تھا، تب بھی ہمارا کینڈیڈیٹس اغوا ہو رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا نہیں کیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں، جبکہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا، جبکہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عمران خان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن پروٹیسٹ متنازع ہوئے، اور وہ لوگ جن کو متنازع کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جن کو کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رنگ کو نہیں آنا چاہیے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے، جب چھٹی وہ
पोल स्लिप कलेक्ट करने के वक्त आप वहाँ होंगे, जब पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशंस के बाहर फेंकने के वक्त आप वहाँ होंगे, तो फिर मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान इस इलेक्शन ने हमारा सिस्टम को किया था, शायद माजी में इतना नुकसान नहीं हुआ। और इतना जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए थे इस इलेक्शन में, वो भी हुए थे। हमारा जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन था, उसने तो पुरअमन का नाम दिया था इस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद। लेकिन हमें पता है कि कैसे पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े थे, कैसे पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े थे, कैसे इस इलेक्शन में भी एक और बलोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोर शहीद हो चुका था, कैसे शहीद सिजरानी साहब को बलूचिस्तान में शहीद करवाया गया, कैसे पन्नू में दहशतगर्दी का वाक़या था, कैसे इलेक्शन डे पे मेरा अपना लड़काना में मेरा पोलिंग कैंप पे बम धमाका हुआ। ये तो खबर भी नहीं था, ये तो पाकिस्तान का ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं था कि पीपल्स पार्टी का कैंप पे लड़काना में धमाका। मेरा पहला इलेक्शन में मेरा पहला वोट डालते हुए आपके पास वो फुटेज नहीं है। आपको मीडिया को जिनका हक था, जिनको पाकिस्तान के अवाम के आंख बन के हमारे पोलिंग स्टेशंस पे और उस प्रोसेस को पे नज़र रखना था, आपको भी एक्सेस नहीं दिलवाया गया। और इसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स निकले, पहले दिन से कोई लेजिटिमेसी नहीं था। और जितने दिन ये हुकूमत अब हुकूमत में रह चुके हैं, अब सारे पाकिस्तान एक पेज पे है, पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे है, हर सूबा से ताल्लुक़ रखने अवाम एक पेज पे है। वो ये पेज है कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा, कि इस सिलेक्टेड इमरान ने जो नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को किया है वो आपके सामने है। जो नुकसान इस सिलेक्टेड इमरान ने हमारा मईशत को किया है वो आपके सामने है। तारीख में हम इतने बुरे मुआशी सूरत हाल के मुकाबले कभी नहीं किए हैं, और आगे जाके अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो हमारा मुआशी हालात मज़ीद बुराई की तरफ चला जाएगा। तो जमहूरियत को नुकसान, मईशत को नुकसान, हमारा सोसाइटी को नुकसान। लेकिन सबसे भरकर एक पैंडेमिक के दौरान जब एक लीडर नहीं लेकिन कठपुतली राज कर रहा है, तो जिस तरीके से हर पाकिस्तानी का सेहत और ज़िंदगी को नुकसान रहा है और आज तक है, वो भी इस वज़ीर आज़म की वजह से है। एक बड़ा वजह सपोजिटली इस वज़ीर आज़म को लेकर आना वो ये था कि हमने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था। और अगर आप साफ शफाफ सादिक और अमीन इमरान खान साहब को बस उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बस बिठा देना, तो 90 दिन के अंदर ही अंदर पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म होना था। अब आप पूछे अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से, आज नया पाकिस्तान में कितना करप्शन हो रहा है? नया पाकिस्तान में कितना करप्शन हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पूछे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक सियासी जमात हूँ, मेरा राय होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना एनालिसिस है कि जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। अगर इस इमरान खान ने कहा था कि उसने किसी को NRO नहीं देना था, इसने अपना दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा एमनेस्टी स्कीम्स दिलवाए हैं।
हर करप्शन मंसूबा को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाइट एलिफेंट है हमारा, वो BRT का जो मंसूबा आज तक मुतनाज़ा है, इसको NRO दिलवाया गया है। सुना है कि उन दोस्तों को मज़ीद काम मिला है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस पे करप्शन, मालम जब्बा का करप्शन, बिलियन ट्री सुनामी का करप्शन, हर मिनिस्टर का, हर एडवाइज़र का, हर स्पेशल असिस्टेंट का जो एसेट्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं, क्या किसी में हिम्मत है उनसे पूछना कि उनका एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं बनता? खुर्शीद शाह की तरह पहला गिरफ्तार फिर सवाल पूछना का केस नहीं बनता? इमरान खान साहब ने हर माफिया को NRO दिलवाया है। चीनी चोरी में NRO, आटा चोरी में NRO, तेल चोरी में NRO, और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी NRO। वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका। अब आप सब ने हमारा वजीर कानून का नया शरीफुद्दीन पीरजादा साहब का नाकाम कोशिश देखा इस ऑर्डिनेंस का जस्टिफिकेशन देना नेशनल असेंबली के फ्लोर। ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। एक तो अगर मैं एक सेकंड के लिए भी ये मानता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये काम कर रहे थे, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम तो ऑर्डिनेंस से पूरा हुआ नहीं। आपने फिर क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उसका एडवोकेट के लिए दरख्वास्त डाला है? हुकूमत पाकिस्तान का दरख्वास्त है। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हमें ऑपोजिशन से बात करना था। जी बिल्कुल, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना था। अगर आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करना था तो ऑपोजिशन के बगैर पास करके दिखाए। ये कानून में नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना है, लेकिन आपका आईन में लिखा है जब नेशनल असेंबली सेशन चल रहा है आपको फौरन ऑर्डिनेंस को पेश करना पड़ता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान में 15 तक मिल रहा था, ये ऑर्डिनेंस में 20th पे ले आया था। फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जून में भी मिल रहा था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी जून में मिल रहा था, मुसलसल हम मिल रहे थे। फिर जुलाई में भी हम मिल रहे थे। तो इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है जब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को हाउस में नहीं ले किया है। अगर हम मानते भी हैं कि आपने इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मानना है, भले माने, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि उनका जुरिस्डिक्शन मानते हुए आप पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर सकते हो। इन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाने की कोशिश की है। अगर हमसे पहले बात करते, हम उनको समझाते कि पर्सन स्पेसिफिक कानून तो आप बना नहीं सकते हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून जो पिछले हुकूमत ने वाज़ेह अक्सरियत से पास करवाया था, उस कानून को इस बात पे स्ट्राइक डाउन किया था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्या हो सकता है कि उसका ऑर्डिनेंस का स्टेटमेंट में आपने कुलभूषण यादव का नाम लिया है। अगर नाम नहीं भी लेते
सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रिव्यू का अपील का फॉर्म दिलवा रहे होते तो आपके कितने कॉन्विक्ट्स है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून के? तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, उनका तरीक़ेकार गैर आईनी, गैर इलीगल था, और अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो इतना सीक्रेटिव होने का वजह क्या था? आपने हम सबसे क्यों छुपाया? यहाँ तक कि आपने पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली से क्यों छुपाया? और एक और बात जो सबसे हैरान कुन बात है कि ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने 60 डेज दिए थे कुलभूषण यादव को और भारत की कॉन्सुलेट को इस ऑर्डिनेंस का फायदा लेना। और 60 डेज में ना कुलभूषण यादव ने ना भारत ने इस ऑर्डिनेंस का फायदा उठाया, और ना ही आपने उस 60 डेज में या उस 60 डेज से पहले पार्लियामेंट तक से पूछा। तो आपका इरादा ये था ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि आपका छुपी हुई ऑर्डिनेंस से जो आपने अखबारात में भी नहीं छपवाए, वो 60 डेज के अंदर कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस का फायदा लेता। 90 डेज के अंदर आपने ले करना था, काम भी हो गया और हमें पता भी नहीं चलता। आपके लिए मसला सिर्फ एक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और कभी भी इंसानी हुकूक पे और इंटरनेशनल लॉ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हम इन सारी चीज़ें को देखते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इशू को पकड़ा, सेनेट में उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उठाए, तो फिर आपने सोचा कि ये शायद मसला बन जाएगा, हम नेशनल असेंबली में लेकर आए। लेकिन आज तक मैं ऑन द रिकॉर्ड डाल रहा हूँ कि हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरा जमात से, मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना हमारे राय लेने के लिए, हमें बताने के लिए कि वो इतने बड़े काम करने जा रहे थे। और ये मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी कठपुतलियों का ये काम कर सकते हैं, जिनका सियासत का कुछ पता नहीं, जिनको हर चीज़ को अपना अना का मसला बनाते हैं, जिनको समझ ही नहीं आते। जब अपने अपने कौम के लिए बड़े फैसले लेने हैं तो आपके उस पर कंसेंसस बनाना पड़ता है। इनमें ना ये सलाहियत है, ना वो अहलियत है। हर क्राइसिस को वो कैटास्ट्रफी में तब्दील कर देते हैं, और जितना देर ये हुकूमत में रहेगा, पाकिस्तान का हर क्राइसिस से कैटास्ट्रफी में तब्दील हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मेरे सामने पीटीआई का मैनिफेस्टो भी है, और मैं थोड़ा टाइम इस पे देना चाह रहा हूँ कि इस मैनिफेस्टो से चले, जैसे भी है वैसे भी है, सिलेक्टेड तो है, लेकिन हुकूमत में आए थे, और ऐसे हुकूमत में आए हैं जैसे किसी और को इतना सपोर्ट नहीं मिला है माजी में। तो इनका डिलीवरी भी सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। हाँ, कोई रुकावट ही नहीं। हर वादा पे पीटीआई हुकूमत ने जो भी वादा किया है मैनिफेस्टो में, जलसे में, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से खुद, एक वादा भी आप बताएं मुझे, कौन सा वादा पूरा किया? हमने कवर कर दिया 90 दिन में करप्शन को ख़त्म होना था, वो तो नहीं हुआ। पहले 100 डेज में आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, अभी तक फैसला नहीं कर सकते कि दफ्तर कहाँ। इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, पता नहीं कितने कितने करोड़ पाकिस्तानियों को बेघर कर दिए। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दिलवाना था। तारीख में जितने पाकिस्तानी इस हुकूमत में बेरोजगार हो चुके हैं,
माजी में किसी हुकूमत में एक वक्त में इतने लोग बेरोज़गार नहीं हो चुके हैं। पाकिस्तान की पूरा का पूरा तारीख में हम कभी भी नेगेटिव ग्रोथ में नहीं आ चुके हैं। अब ये खुद मानते हैं, अपने इकोनॉमिक सर्वे मानते हैं कि प्री कोविड का लॉकडाउन वो नेगेटिव ग्रोथ में। पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान इस हुकूमत ने किया है, माजी में किसी हुकूमत ने हमारा मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। इनका चैप्टर 2 जो है मैनिफेस्टो का, वो गवर्नेंस पे था। उसका पहला एक पॉइंट है उसमें कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को रिव्यू करना था, स्ट्रेंथन करना था इसका मैंडेट, इंडिपेंडेंस एंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नैब चेयर। इस काम पे उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया। उन्होंने पूरा पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना था by devolving power and decision making to the people through an empowered local government। जब से पीटीआई की हुकूमत में आई है, जहां चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो या उनका इत्तेहादी हो बलूचिस्तान में, उनका पहला काम क्या था? लोकल गवर्नमेंट का उनको मिड टर्म मुकम्मल टर्म भी पूरा करने नहीं दिया, उस निज़ाम को हटाना। और आज तक आपका तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं है, डेवोल्यूशन और लोकल डिसीजन मेकिंग तो दूर की बात है। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि सिंध में आज पहली बार अगस्त के महीने में इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पूरा सिंध का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जिसमें कुछ जगह में मेरे मुखालिफ की भी हुकूमत है, जहाँ मेरा कैपिटल शहर में मेरा मुखालिफ का हुकूमत है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ बेहतरी का गुंजाइश होगा मेरा लोकल बॉडी का निज़ाम है। लेकिन मैं फ़ख्र के इस कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान में वाहिद वो सूबा है जहाँ मेरा लोकल गवर्नमेंट अपना टर्म मुकम्मल करेगा। और ये इस सेलेक्टेड दौर में एक जमहूरियत की जीत है। और अब इनको अपने अवाम को अगले इलेक्शन में फेस करना पड़ेगा। अगर वो मुतमिन हो उनका काम में, उनका मेहनत में, तो वो उनको फिर से मुंतखब करेंगे। मुतमिन नहीं है, किसी और को मौका मिलेगा। डेवोल्यूशन इनका बात करते हैं, तनकीद हम पे होता है, लेकिन एक ही जगह है पूरे पाकिस्तान में जहां आज तक लोकल गवर्नमेंट जारी है। इन्होंने वादा किया था कि वो डीपोलिटिसाइज उनको करना था हमारा पुलिस का निज़ाम, और उसका जो जिस तेज़ी के साथ आईजी चाहे पख्तूनख्वा का हो या ख़ास तौर पे पंजाब का हो या यहाँ इस्लामाबाद का हमारा कैपिटल का हो, तब्दील होते हैं। आपको अंदाज़ा है कि कितने सियासी तौर पे हमारे पुलिस इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब के जो जैसे वो हनीमून पीरियड इनका हुकूमत में था, पहला जो आईजी उन्होंने निकाला था वो इस बात पे था कि एक वज़ीर के घर पे जानवर घुसा था और उस बात पे आईजी इस्लामाबाद हटा। आज तक ये डीपोलिटिसाइज पुलिस का निज़ाम इन्होंने पंजाब में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इन्होंने बहुत से वादे किए हैं, हर वादा पे मुकर चुका है। इन्होंने वादा किया था कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगा। आज तक वज़ीर आज़म साहब तो वहाँ हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो बाइसिकल पे जाना था दफ्तर हर दिन, अभी तक वो तो हेलीकॉप्टर पे जाता है। वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि हर सूबा का गवर्नर हाउस को वो यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। उन्होंने तो अपने हुकूमत में जहाँ अपने सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ भी यूनिवर्सिटी पे तब्दील नहीं कर चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन पे they were going to facilitate a drive through legislative reform for the right to information, the right to service, and we will abolish the culture of secrecy, and we will ensure that all government actions, records, information are open to public scrutiny. अब
نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے جو ہمارا حق ہے آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھنے کے لیے ہمیں نہیں دیکھنے کی اجازت دیتے، پاکستان کی عوام تو دور کی بات ہے۔ یہ پورا کا پورا لسٹ ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر وعدہ پہ میں نے ان حق کا ہر پیج سے میں I've gone through their manifesto and ہر جگہ سے، ہر موقف سے، ہر وعدہ سے وہ مکر چکے ہیں، یو ٹرن لے چکے ہیں، ستیہ ناش کر چکے ہیں، ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیے ہیں، ہمارا معیشت کو تباہ کر چکا ہے۔ آج تک یہاں تک کہ ہر پاکستانی کا فصل آج تک خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے۔ اس سلیکشن کا جو بوجھ ہے پاکستان کے عوام آج تک اٹھا رہے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب تک اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ اس سلیکٹڈ کو ہی رہنا ہے، جو بھی حال ہو ہمارا ملک کا، جو بھی حال ہو ہمارا فارن پالیسی کا، جو بھی حال ہو ہمارا معیشت کا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو لینا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں اپوزیشن خود ڈیوائڈڈ اور کمزور نظر آ رہی ہے۔ اب 2 سال مکمل ہونے جو ہیں، آگے 3 سال اور بچے ہیں، اگر اپوزیشن اسی طرح ڈیوائڈڈ رہے گی، کمزور رہے گی، تو حکومت کے لیے تو یہ بہت کمفرٹیبل ٹائم ہوگا۔ آپ نے کوئی موشن والے معاملے کا ذکر کیا، لیکن آپ کے پاس بھی لیگل ٹیم ہے، اپوزیشن آپ کی اپنی کوئی امینڈمنٹ لا سکتے تھے، لا سکتے تھے اگر ہمیں پتہ ہوتا، لا سکتے تھے اگر اسپیکر صاحب ہمیں موقع دیتا۔ آج تک وزیر نے تو وہ آرڈیننس جو ہے ہاؤس میں پڑھا بھی نہیں، دور کی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی سوال تو پوچھ سکے۔ یہ اگر جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے، پارلیمان میں یقین ہی نہیں رکھتے، اس حکومت کو ہر ایشو کو متنازع بنانے کا شوق ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، یہ حکومت نے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس باقر کا تاریخی فیصلہ آپ کو بتا رہا ہے، ہر پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا، کس طریقے سے مخالف کے خلاف استعمال کیا گیا تھا اور آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کا ابالشمنٹ کے لیے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو آزادی ملنا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو سیاسی آزادی ملنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ آج تک نہ پارلیمنٹ میں، نہ میڈیا پہ، نہ سڑکوں پہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے۔ یہی ہمارا شکوہ تھا جنرل الیکشنز میں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے، اور آج تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل پہلے دن سے لے کے آج تک اپنا بھرپور طاقت سے، اپنے بھرپور محنت سے ہر ایشو پہ، ہر پالیسی پہ، ہر کام پہ ان کو ان کا اپنا جو کام ہے، اپنا جو ذمہ داری ہے اپوزیشن کا، وہ اپنے کیپیسٹی کے حد تک پورا کیا۔ ایک سوال یہاں سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان میں ہمارا تاریخ ہے، ہمارا موقف ہے، جمہوری سسٹم کا حصہ نہ رہنا کبھی آپشن نہیں تھا، اور اس سسٹم میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا، آپ کو آج تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کلبھوشن یادو کے لیے یہ کیا کام کر رہے ہیں۔
تو جتنا بھی کم ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ 17 سیٹس میں وہ پارلیمنٹ میں تھی, مگر میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھی اور اس کو حکومت کو ہلنے نہیں دیا. اور اس نیا دور میں جو بھی مشکلات ہیں وہ سو ہے, لیکن ہم سمجھتے اپنا فرض ہے, اپنا کام ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا, وہ ہم شمسی صاحب, شمسی بہت شکریہ بلاوت صاحب. آپ نے گزشتہ دنوں لاہور میں بڑا مصروف وقت گزارا اور اے پی سی کے حوالے سے ملاقاتیں کی. اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ 18ویں ترمیم آج کٹہرے میں کیوں ہے؟ جہاں تک ہمارا اے پی سی کی بات ہے, ہمارا تفصیل میٹنگ ہوا تھا لاہور میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ, جس کے بعد ہم نے اپنے جو پارٹی کے نمائندے ہیں کمیٹی کے لیے تاکہ ہم اسی ایجنڈا پہ کام کریں وہ بھی طے کیے تھے اور اناؤنس کیے تھے, اور عید کے بعد جو ہمارا اے پی سی ہونا ہے اسی کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کراچی میں ملا, نون لیگ سے لاہور میں ملا, آج ہی میں اختر مینگل صاحب سے ملا ہوں, اور مسلسل جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں ان سے اپنے انگیجمنٹ میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. جہاں تک 18th امینڈمنٹ جو ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کٹہرے میں ہے. ان پہ جو جس یہ حکومت حملہ ہمیشہ آلموسٹ ایوری ڈے نا یا این ایف سی پہ یہ 18th امینڈمنٹ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے حکومت کٹہرے میں ہے. اور اگر ایک آنچ بھی آتا ہے این ایف سی ایوارڈ پہ اور 18th امینڈمنٹ پہ تو حکومت کو ہی نقصان ہوگا. جو نقصان پاکستان کی وفاق اس وقت نہیں اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو فل فورس میں ریزسٹ کیا جائے گا. آپ ان الیکشن کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے جن کے بارے میں چیئرمین آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ آر او الیکشن تھے, 93 کے 7 کے الیکشن, 88 کے الیکشن, 85 کے الیکشن. اگر یہ سارا کچھ جائز تھا تو کل آج کو ناجائز کیوں ہے؟ جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے, میں نے یہی تو الزام ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو این آر او دے رہے تھے, ریلیف پہنچا رہے تھے, اور اب جب اس نے اس ریلیف کا فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آپ کا دوسرا کوشش ہے. دس از دیئر سیکنڈ اٹیمپٹ ٹو برنگ اٹ ان دا نیشنل اسمبلی. آئی تھنک یہی, جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, اس الیکشنز میں جو ہوا, جس طریقے سے ہوا, اس پہ ہمارا جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں وہ فرق ہے, میں نے اس پہ بھی بات کیا, لیکن یہ بھی ایک واضح ڈفرینس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ اور دوسرے کے موقف پہ, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل جو ایک مینیپولیشن رہا ہے ہمارا الیکشن میں, چاہے وہ 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آئی جی آئی کی صورت میں, یا 97 میں, یا 2002 میں, جب ہم نے 2008 میں الیکشن جیت کے حکومت بنا رہے تھے, اس وقت بھی ہم نے کہا ہم یہ الیکشن ریزلٹس انڈر پروٹیسٹ مان رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کس طریقے سے اس الیکشن میں ہمارے خلاف دھاندلی ہوا تھا. 2013 میں ہم نے سب سے پہلے اس الیکشن پہ بات کی تھی, اور 2018 میں آپ کے سامنے ہمارا موقف ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش کیا اس نظام میں بہتری لانے کے لیے. آج جو ہم نے پچھلے الیکشن ریفارمز میں ایشوز ایڈریس کیے ہیں, انفارچونیٹلی نیا ایشوز کھڑے ہوئے ہیں جس کو ہمیں بھی اب ایڈریس کرنا پڑے گا.
नहीं ऐसे एक तो जहाँ तक नून लीग की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे सियासी जमातें जो है जो अपोजिशन में हैं वो अपने अपने तौर पे अपने किरदार अदा कर रहे हैं, और मेरा राब्ता आज भी उनके साथ है। जो JITs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ले आए जा रहे हैं उनमें कोई हैसियत नहीं है, उनमें कोई वो झूठी जाली JITs है, और हम इनका मुकाबला हर फोरम पे करने को तैयार हैं। हम इनसे there's no इशू, और शहबाज शरीफ साहब को भी इस बीमार हालत में भी नैब का सामना करना पड़ रहा है। सारी सियासी जमातें जो है वो अपोजिशन का रोल आपने देखा होगा, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में इस कुलभूषण यादव इशू पे भी बोला, हम सब अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। APC इंशाल्लाह ताला ईद के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून का सदर जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा APC की जो लीडरशिप है वो करेगा। और ये सारे ऑर्डिनेंस को इस वक्त हम ऑर्डिनेंस को पार्लियामान और जमहूरी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। इस वक्त पार्लियामान में आज तक मैं रिएटरेट कर रहा हूँ, आज तक हुकूमत ने मेरा जमात से ना रब्ता किया, ना इंगेज किया, ना बात किया। अगर ऐसा ही रहा हम पार्लियामान में भी मुखालफत करेंगे और कोर्ट्स में भी Please, Nafisa, I'm answering it. Nafisa, can you put your hand up? जहाँ तक APC की बात है, हमने जो जॉइंट रेजोल्यूशन निकाला था बजट के ऊपर, वो एक बहुत अहम पहलू था हमारा APC का, जिस पे हमारा rather than being on the APC एजेंडा, हमने एक जॉइंट रेजोल्यूशन के तहत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उस इशू को एड्रेस किया है। अब हम आपस में हमारा कमिटीज़ काम कर रहे हैं कि हम अपना जो एजेंडा इस APC के लिए है उस पर कंसेंसस बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जब शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब होता है उस APC का वो APC का भी होगा। अख्तर मैंगू साहब के साथ बहुत से तफसील से हम बात किए हैं, बहुत कॉम्प्रहेंसिव बात रहा है, और हमने जो पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस है, जो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मसाइल है, उन पे बात किए हैं। हमने इस पे स्ट्रेस किया है कि कैसे जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस ही इसका हल है। जब शहबाज शरीफ साहब ये ईद के बाद सेहतियाब हो जाता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे जमातें हैं अपोजिशन में, हम सबको ऑफिशियली इंगेज करना चाहिए मैंगल साहब से कि वो ऑफिशियली अपोजिशन का हिस्सा बने। खातून को मौका देना। मैडम आप मैं समझता हूँ कि अवाम बहुत ही अवाम के जज्बात जो है, अवाम के अंदर जो नाराज़गी जो है
اور جس طریقے سے یہ سارے جذبے سپریس ہو رہے ہیں اس رجیم کے تھرو، اگر اپوزیشن عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے پورے پہ نہیں اتریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اور میں سمجھتا کہ جمہوری جماعتیں کو ان ایموشنز کو، عوام کے جذبہ کو جمہوری طریقے سے چینل کرنا چاہیے، جمہوری طریقے سے ہمارا سسٹم کے اندر رہ کر ان کا مسائل حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم سے نہیں ہوتا تو یہ ہمارا ہاتھ سے کام نکل جائے گا.